प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में हार्वेस्ट चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। God is in the business of making all things new. His healing brings restoration beyond understanding, no matter where you come from or what you have done. 2 Corinthians 5:17 says, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अगर आप वचनों के द्वारा और अधिक आशीषित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको सभी इवेंट्स की जानकारी मिलती रहे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने प्रार्थना निवेदन व गवाहियाँ पोस्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम क्वायर टीम स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करेगी। इसके बाद हम अपने दशमांश और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। इसके पश्चात पास्टर जॉन जोसेफ के द्वारा आज का वचन बांटा जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। ओपनिंग प्रेयर के लिए आपके परिवार के किसी सदस्य को निवेदन करते हैं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a wonderful privilege to serve our living God. And this living God dwells in the praises of His people. हमारा जीवता परमेश्वर विराजमान होता है जब हम आराधना स्तुति करते हैं. We are called kings and priests in the house of God. And every priest has to offer his sacrifice. And this time, this priest wants a sacrifice of praise unto God. स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर के आगे हम चढ़ाने पाए। मैं तो कहता हूँ जितना भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो कम है। उसके उपकारों को याद करके हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देने पाए। गुडनेस ऑफ गॉड जरमाया 33:14 में कहता है, Behold the days come, saith the Lord, that I will perform the good thing that I have promised unto the house of Israel and to the house of Judah. God is saying, I will perform the good thing. भला परमेश्वर हमारे साथ भला ही करना चाहता है. And all our life He's been so good and so faithful. और ये गीत ये कहता है, goodness of God. I will sing of the goodness of God. Love you, Lord. Oh yeah, mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived
in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You're close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. God is so good. Oh yes, He is. God is so good. Oh yes, Lord. God is so good, is so good to God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, बहुत अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Our God is a good God. Our God is a merciful God. हमारे साथ वो भलाई और भलाई ही करता है. उस परमेश्वर की भलाई के लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते जाए. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving.
you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory, Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory, Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to
You're so good. You're so good to me. प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का इस संडेज ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आज के क्वायर का, जिन्होंने सुंदर से वर्शिप में और स्पिरिचुअली और आत्मिक तौर से हमें परमेश्वर के नज़दीक में हमको लेकर गए ताकि हम उसमें प्रभु के साथ संगति करने पाएँ। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए भी, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में दिया ताकि हम उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करें। जैसे कि वचन में लिखा है और उसका 2 कुरिन्थियों उसका 9 और उसके 10वीं आयत में कहता है, नाउ ही हु सप्लाइज सीड टू द सोअर एंड ब्रेड फॉर फूड विल ऑल्सो सप्लाई एंड इंक्रीज योर स्टोर of seed and will enlarge the harvest of your righteousness। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से क्या करता है, जो बेनिफिट केवल लेने वालों को ही नहीं परंतु परमेश्वर हमको देने वालों को भी देता है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अद्भुत कामों को करता चला जाता है। जैसे कि इब्रानी उसका 13 और उसका 16वीं आयत में वो कहता है कि डू नॉट निग्लेक्ट टू डू गुड एंड टू शेयर what you have, for such sacrifice are pleasing to God। है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो कुछ भी हम प्रभु को देते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। सो क्यों ना ये समय हम लोग ऑफरिंग और टाइट्स को हम लोग प्रभु के चरणों में चढ़ाए ताकि हम उस खुदावंत की महिमा और बड़ाई करें। सो आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी सामर्थ के लिए। प्रभु खुदा परमेश्वर, प्रभु तूने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से तेरी महिमा हम करने पाए, जिससे तू अति प्रसन्न होता है। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए खुदा परमेश्वर जिन्होंने अपने हाथों में उन भेंटों को लिया है प्रभु, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन है पिता परमेश्वर। खुदा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनके भेंट को देने के हृदय को तू देखना प्रभु जी, और उसके अनुसार तू उन्हें आशीषित कर और प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में हर एक उन प्रतिफलों को पा सके जो खुदा तूने उनके लिए संजो करके रखा है। प्रभु जी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आशीष दे, बरकत दे खुदा और पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु की इस भेंटों के द्वारा, इस दशमांश के द्वारा तेरी महिमा होने पाए ऐसे तू करना प्रभु जी। धन्यवाद देते आने वाले वचन के लिए प्रभु, इन वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत कर, हमें उत्साहित कर, हमें सिखा, हमें समझा प्रभु, ताकि खुदा परमेश्वर हम तेरी इच्छा को पूरी कर सके और उन वचनों के द्वारा हम जीवन जी सके ऐसे तू होने देना प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा हम तुझे देते प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Good morning, Jai Masih, praise the Lord, hallelujah. Welcome to the house of God, online church service आज हो रही है. हाउस ऑफ गॉड उसको बोलते हैं जहाँ पर गॉड है. आज परमेश्वर हमारे बीच में है, आमेन ना. और हम अभी आराधना स्तुति जय जयकार किए परमेश्वर का. आई होप यू एंजॉयड द वर्शिप. गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर कितना भला है. एंड ही सच अ फेथफुल गॉड. उसकी भलाई 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 पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है. थैंक यू सो मच एल्विन एंड फुल टीम. आपके सबके सहायता के लिए धन्यवाद. एंड व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड वर्शिपिंग आवर लिविंग गॉड. और जब हम आराधना कर रहे परमेश्वर आज हमारे बीच में है. परमेश्वर का धन्यवाद. एलिस्टर एंड श्रद्धा, यू डिड अ ग्रेट जॉब. वेलकम में सचमुच में परमेश्वर बहुत आय से आपको आशीष दे. Offering prayer, Pastor Vishwas, thank you so much. God bless you. I also want to thank each one of you for your offerings, for your tithes. So आप जो willingly house of God में जमा करते जा रहे हैं, ऑनलाइन गिविंग्स दे रहे हैं. मैं कहना चाहता हूँ आपके ही दान के द्वारा ये चर्च चलता है ना. ये मिनिस्ट्रीज़ हम लोग सब कर सकते हैं. और ख़ासकर ये लॉकडाउन के समय पर कोविड-19 ये पैंडेमिक सीज़न में हम कितनों की मदद किया है. ये सब आपकी सहायता के द्वारा हुआ है. परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते. आइए आज हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे. और आज के लिए मुख्य वचन लिया गया है एक्स चैप्टर 11 वर्स 24. एक्स 11 वर्स 24. फॉर बारनबास was a good man and he was full of the Holy Spirit, full of faith, and a great number of people were brought to the Lord. क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले. Yes, Barnabas was a good man. आज हम जो टॉपिक में लिया हूँ कैरेक्टर ऑफ गॉड. और उस कैरेक्टर ऑफ गॉड में खास बात है बीइंग गुड. आवर गॉड इज अ गुड गॉड. वो भला परमेश्वर हमारे साथ भला ही करता है. इसलिए आज का टाइटल कैरेक्टर ऑफ गॉड बीइंग गुड. और ये पार्ट 1. आगे भी अनुग्रह प्रभु करे तो हम आगे भी इस विषय को और भी लेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ गॉड. पर यहाँ पर हम बारनबस के लाइफ के बारे में कुछ पढ़ने वाले, सीखने वाले. नंबर 1 चीज यहाँ पर हमको दिख रहा है, बारनबस वॉज अ गुड मैन. नॉट ओनली दैट, ही वॉज ऑल्सो फुल ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण. और इंग्लिश बाइबल कहता है फुल ऑफ फेथ, विश्वास से परिपूर्ण था ना. ये जो बारनबस के लाइफ के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ना. गुड मैन ना मतलब गुड क्रिश्चियन कैरेक्टर था उसका. एक गुड मैन जो होता है वो क्लीन होता है आउटसाइड और इनसाइड ऑल्सो. जैसा बाहर से दिखता है वैसे ही वो अंदर भी है. और इसका परिणाम ये हुआ ना कि बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ गए ना. बिकॉज ऑफ दिस वन मैन हु वाज सो गुड मैन, फुल ऑफ द होली स्पिरिट एंड फुल ऑफ फेथ ऑल्सो. मैं सोचता हूँ ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बहुत आवश्यक है हर एक मसीही व्यक्ति के लिए. बीइंग गुड, होली स्पिरिट एंड फेथ. ये तीनों बातें मैं कहता हूँ वन कैन नॉट गो विदाउट दी अदर. कई बार हम लोग फेथ पर बहुत जोर दे दे, वो अच्छा भी है. कई बार होली स्पिरिट पर बहुत जोर देते, वो भी अच्छा है. पर ऑल्सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ना भूलने पाए दैट यू आर सपोज टू बी गुड. जब ये तीनों कैरेक्टर्स हमारे अंदर में पाए जाते हैं ना, सो मेरा जीवन एक प्रभावशाली जीवन. और उसका परिणाम देखो, लॉट मैनी मोर पीपल वर एडेड टू द लॉर्ड, ब्रॉट टू द लॉर्ड. मैं कहना चाहता हूँ ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का खास एसेंस है, टू बी गुड पीपल ना. टुडे the world is looking out for good people. Even the Bible says, Matthew chapter 5 verse 13 में यीशु मसीह ने कहा, you are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thence good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. हिंदी में पढ़ दे. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. Yes, today the world needs good people. Good people are hard to find. आप शायद क्रिश्चियन नर्स होंगे, डॉक्टर होंगे,
टीचर होंगे, बिजनेस में होंगे ना। क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक अलग ही नाम होता है सोसाइटी में ना, और वो भला नाम हमें बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ। वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ ना, पर सॉल्ट अपने स्वाद को खो दिया तो गुड फॉर नथिंग है वो ना। इसलिए हम वो काम नहीं कर सकते जो बाकी लोग करेंगे। एक चैलेंज है आज एक ऐसे कम्युनिटी वातावरण में ना जीवन बिताने के लिए एक गुड कैरेक्टर गॉड डिमांड्स, क्रिश्चियन लाइफ डिमांड्स कि मेरा कैरेक्टर बहुत सही हो। हमारे जो लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बाइबल क्लासेस चल रहा है और अभी तो यही कोर्स चल रहा है क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। कुछ 12 घंटे का ये कोर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है। मैं कहना चाहता अगर आप भी इंटरेस्टेड है आप भी ज्वाइन जरूर से करिएगा। घर बैठे बैठे उत्तम खरा वचन आपको सुनने को मिलता है। एंड दिस इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इंडिया भर में कितने जगह लास्ट 15 ईयर्स में हमने शुरू किया है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे क्लासेस होती है 4 o'clock to 5:30, सिर्फ 1.5 घंटा मंडे को और 1.5 घंटा ट्यूसडे को भी होता है। प्लस वी आर ऑल्सो डूइंग पैरेलल ऑन फेसबुक लाइव। अगर आपको ये टाइम नहीं जमता है तो आप फेसबुक लाइव में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। एंड देन आपको एक MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गूगल फॉर्म में देना पड़ता है। हिंदी में क्लासेस होती है, जरूर से इसका पूरा आप फ़ायदा उठाइए। आई एम श्योर यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड। और इस क्लास में हमने कैरेक्टर के बारे में बहुत सीखा है ना, और ये कुछ और एडिशनल पॉइंट्स में ले रहा हूँ। और डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर भी हमने सिखाया था उसमें। एक्चुअली कैरेक्टर इज अ समेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स यू हैव इनसाइड ऑफ यू बाय विच यू लिव योर लाइफ। इट इज द मेंटल एंड मॉरल एट्रीब्यूट्स वेदर गुड और इवल दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। चरित्र उन सिद्धांतों का योग है जो आपके अंदर है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन जीते हैं। ये मानसिक और नैतिक गुण है, जहां चाहे अच्छे हो या बुरे हो, यह आपको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। ये कैरेक्टर डिफाइंस यू। आप क्या एंग्री व्यक्ति हैं, आप स्टबन है, रूथलेस है, अनकाइंड है ना, अनफॉरगिवन है, आप चोरी, ये सब कुछ आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। दूसरी तौर में आप लवेबल है, आप काइंड है, पीस लविंग है, आप ईमानदार है, आप मेहनती है, ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। और आपका कैरेक्टर आपका सोसाइटी जहाँ पर आप बड़े हुए, आपके फैमिली जहाँ बड़े हुए, वो आपके कैरेक्टर पर प्रभाव डालता है। इसलिए सो इम्पोर्टेंट ना कि हम अपने आजू बाजू में ना वी सराउंड अवर सेल्फ विद पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर पर प्रभाव डालता है। आई वॉन्ट टू से कैरेक्टर अफेक्ट्स एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपका निर्णय होगा, आपके शब्द होंगे, आपके कार्य होगा, दृष्टिकोण होगा, लक्ष्य होगा, हमारे रिश्ते जो बनाते, सब में कैरेक्टर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। इनफैक्ट देखा जाएगा एनी ब्रेकडाउन इन लाइफ, अगर कुछ फेलियर्स हुआ, कुछ ट्रेजेडी हुआ, अगर उसको हम लोग खोद के देखते हैं ना कहीं आपका फेलियर इन कैरेक्टर हुआ। अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाया ना, अगर आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए, आपका मैरिज ब्रेकडाउन हो गया, अगर देखेंगे ना तो मूल सोर्स बातें में कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ कैरेक्टर। सो आपका कैरेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसका प्रभाव आपके वर्क लाइफ में, आपके सोसाइटी में, वेर एवर यू गो एंड हैव रिलेशनशिप, सब में कैरेक्टर विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ना। इनफैक्ट हमने इस कोर्स में सीखा भी था ना, आपका कैरेक्टर का स्ट्रेंथ उतना ही है जो आपके वीकेस्ट लिंक ना, जैसे चेन में एक वीकेस्ट या कमज़ोर कैरेक्टर है, उतना ही आपका स्ट्रेंथ है कैरेक्टर। मैं आगे आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक चेन इज मेड अप ऑफ मेनी लिंक्स। आपके पास 99 गुड कैरेक्टर्स होंगे, यू आर अ गुड पर्सन, पर आपके पास 1 वीक कैरेक्टर है ना। उस चेन का स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वीकेस्ट कैरेक्टर, वीकेस्ट लिंक ना। ये शैतान आपको गिराएगा तो आपके वीकेस्ट पॉइंट पर गिराने वाला है ना, वही बातों पर परीक्षा लेगा और आप फेल हो जाएंगे। जैसे जूडस इस्कैरियोट, मनी का लोभ लालच था ना, वहीं पर गिर गया ना। सैमसन इतना अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड था, बट वुमन के चक्कर में वहीं पर गिर गया ना। कितने सारे ग्रेट माइटी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड, 99 गुड पॉइंट्स थे पर 1 बैड पॉइंट, और शैतान ने उनको वहीं पर गिरा करके रख दिया ना। इसलिए
हमारा वो लूज कैरेक्टर, हमारा वो वीक कैरेक्टर, उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। सो क्रिश्चियंस में ना ये कैरेक्टर ऑफ बीइंग गुड बहुत ज़रूरी है ना, भला होना। हमने बहुत सारे कैरेक्टर ट्रेट्स वो बाइबल क्लास में भी लिया है, परंतु ये वाला पॉइंट नहीं लिया उसमें ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज आवर गॉड इज़ अ गुड गॉड। हमारे अंदर जो होली स्पिरिट है, ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है। ये क्राइस्ट की स्पिरिट मेरे अंदर में भले काम मेरे द्वारा करना चाहती है, गुड वर्क्स। अवर गॉड इज अ गुड गॉड। यीशु मसीह ने भी कह दिया लूक 18 चैप्टर में और 19 कलम में कहता है ना, कोई उत्तम नहीं केवल एक, अर्थात परमेश्वर। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, और मेरा परमेश्वर मेरे साथ भला ही करता है। क्यों ना कुछ ऐसे अवसर लगते होंगे आपको कि आपके साथ बुरा किया, परंतु मेरा परमेश्वर बुराई से भी भलाई निकाल सकता है ना। जैसे जोसेफ के लाइफ पे भी उसके भाइयों ने बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, आगे प्रिजन सेल में डाला, पर उसमें से भी सब में से भलाई निकाला। इनफैक्ट रोमन्स 8:28 भी कहता है, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे, रोमन्स 8:28 प्लीज। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यस, सब कुछ भलाई, सब कुछ भला ही उत्पन्न करती है मेरे लाइफ में, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है और अपने उद्देश्य के लिए बुलाया है। ऑल थिंग्स विल वर्क टुगेदर फॉर गुड। साम 73 और 1 भी कहता है, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यस ना, आवर गॉड इज अ गुड गॉड, और जो शुद्ध मन वाले हैं उनके लिए परमेश्वर भला है, भला है, भला है ना, गुड गॉड है, और मेरे साथ वो गुड करता है ना, गुड करता है। और अब उसके अंदर में, हमारे अंदर में उसने अपनी गुड स्पिरिट डाला है, जो मेरे अंदर में गुड वर्क्स कराती है, भला काम करती है। इनफैक्ट थर्ड जॉन चैप्टर 1:11 में, इंग्लिश बाद में हिंदी पढ़ेंगे, जॉन कहता है, बिलवेड फॉलो नॉट दैट विच इज इवल और बैड, बट दैट विच इज गुड। ही दैट डूएथ गुड इज ऑफ गॉड, बट ही दैट डूएथ इवल हैथ नॉट सीन गॉड। हिंदी में पढ़ देंगे। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। यस ना, जो भला करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न है, बिकॉज अवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारे अंदर में वो स्पिरिट ऑफ गॉड है ना, जो मेरे अंदर में गुड वर्क्स कराएगी, गुड बातें बोलूंगा। मैं अगले ने बुरा बोला है पर मैं फिर भी उसका भला कर दूंगा। वो मेरा दुश्मन होगा पर मैं उसके लिए प्रार्थना कर दूंगा। डू गुड, डू गुड, डू गुड। परमेश्वर चाहता है कि मैं भले काम ना, भले काम करके बुराई को मैं जीत लूं ना, उस व्यक्ति को जीत लूं जो मेरे साथ बुरा भी करता होगा। एक चैलेंज होगा, चुनौती होगा ना, पर गुड, परमेश्वर चाहता कि आप गुड करें। ये गलेशियंस 5:22 में जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट भी वर्णन किया गया है ना, ये बहुत सारे लिस्ट है, उसमें भलाई भी है, विश्वास भी है, नम्रता, संयम भी है ना। ये सब भले काम हमारे जीवन में पाए जाए, बिकॉज हमारे अंदर में वो वैल्यूएबल होली स्पिरिट डाल दिया गया है। देखो, एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास में कोई वैल्यूएबल मोटर कार है, आप किसी के हाथ में नहीं सौंप देंगे जो इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है, नोवाइस है, जानता भी नहीं चलाने को ना, पर उसी के हाथ में देंगे जो जानता है, अच्छे से रखवाली करता है ना, उसी के हाथ में कुछ वैल्यूएबल सामान हम सौंपते हैं ना। उसी रीति से परमेश्वर ने होली स्पिरिट उंडेलना चाहता, वैल्यूएबल स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट आपके अंदर डालना चाहता है, परंतु परमेश्वर वो व्यक्ति को ढूंढता है जो गुड वर्क्स है, भला जीवन है। लूक चैप्टर 11:13 में यीशु मसीह ने कहा ना, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यस ना, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children,
how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him. प्रभु वो होली स्पिरिट देना चाहता है ना, परंतु हमारा जीवन सही होना चाहिए ना, पवित्र होना चाहिए ना। जरूर सैल्वेशन प्रभु ना पापियों को बचाने को आया, परंतु विश्वास में आने के बाद फिर भी आपका पापी और गंदगी जीवन नहीं रह सकता है। वो आपको होली स्पिरिट और पवित्र आत्मा के वरदान से भर देना चाहता है। सो गॉड इज लुकिंग फॉर क्लीन पीपल विथ क्लीन हार्ट ना, गुड पीपल, ऑनेस्ट रिपोर्ट जिसका होगा ना, वो अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने स्कूल कॉलेज में, सब बातों में वो एक अच्छा भला नाम रखता है। दूसरे तौर में, दूसरे साइड में देखेंगे जो बैड पीपल है, जो चीट करते हैं, जिसका बैड नेम होगा ना, वो डिसीव करते, वो बिट्रे करते, धोखा देते, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं ना, वो उनका नाम बुरा हो। गॉड प्रभु चाहता है गुड नेम हमारा होने पर। इसलिए ये बारनबास के लाइफ से आई वाज सो फैसिनेटेड। मैं तो इसमें से बहुत कुछ लेसन इसके व्यक्ति के लाइफ से मैं सीख सका हूं, जो आज आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। एंड नंबर 1 पॉइंट, इनफैक्ट 6 पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा बारनबास के लाइफ में से। नंबर 1 पॉइंट, ही वॉज अ गुड मैन ना, मीन्स उसका पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ दोनों गुड था ना। वो डबल फेस व्यक्ति नहीं था कि बाहर बहुत अच्छा है और घर में तो बुरा हाल ना, अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ में बुराई और बाहर लोगों के साथ में। कुछ लोग ऐसी करते हैं ना, सभी स्त्रियों के साथ में भले बातें करेंगे, सच अ गुड मैन यू आर ना, अपने ही वाइफ के साथ में आंखें गड़ा करके बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ में अपने घर को व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं। गुड मैन ना इज अ क्लीन मैन इनसाइड आउट ना, वो डबल फेस वाला व्यक्ति नहीं है। गुड मैन ना इज नो रिस्पेक्टर ऑफ पर्संस, बिकॉज ये गॉड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो रिच होगा, वो इन्फ्लुएंशियल, वो फेमस होगा, वो पुअर व्यक्ति भी होगा, उसके साथ सब एक रीति से वो डील करता है। गरीबों की भी वो सुधी ले लेता है ना। परमेश्वर ऐसे लोग को पसंद करता है, उनके द्वारा काम करना बहुत चाहता है। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है एक्स चैप्टर 6 में एंड वर्स 3 में, जब हिब्रू विडोज को सेवा करने की बात आई तो पतरस और चेलों ने कहा, हम तो निरंतर प्रार्थना में वचन की सेवकाई में लगेंगे, पर तुम्हारे बीच में, हिंदी में पढ़ देंगे 6 and 3 एक्स चैप्टर 6। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। यस, उन्होंने कहा तुम्हारे बीच में 7 ना सुनाम या गुड नेम जिसका हो, ऑनेस्ट रिपोर्ट जिसका हो, एंड ऑल्सो मैन फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड विजडम, मतलब वो नो हाउ है उस काम करने का उनके पास में। ऐसे लोगों को चुनो। सो हम बाइबल में देख रहे हैं पीपल विद गुड नेम आर ऑलवेज वेलकम इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। गॉड उनको यूज करना चाहता है ना। ऑनेस्ट रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है अमंग्स द सोसाइटी, नॉट ओनली इन द चर्च, नॉट ओनली इन द फैमिली, पर बाहर में लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस में, बाजार में, आप जिसके साथ डील करते हैं वहां पर आपका रेपुटेशन कैसा है, आपका नाम कैसा है। आज गॉड ऐसे लोगों को ढूंढता है ना जो ऑनेस्ट रिपोर्ट हो गए इन द सोसाइटी। इनफैक्ट पॉल ऑल्सो सेड इन 1 Timothy chapter 3 and verse 7 में, पढ़ देंगे हिंदी में डायरेक्टली प्लीज। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। That's right। और बाहर के लोगों में ना उनका नाम सुनाम होना, बाहर के लोगों में इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ना। मेरे वर्क प्लेस में ना मेरा नाम अच्छा होने पाए, इनफैक्ट 2 Chronicles 16 chapter and verse 9 में भी लिखा है, पढ़ देंगे हिंदी में। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। That's right। ना यहोवा सारी सृष्टि में ढूंढ रहा है। राइट नाउ ही इज लुकिंग एट योर हार्ट ना, whose heart is
perfect. The eyes of the Lord run to and fro. ना जो व्यक्ति सही काम करता है, चॉइस लेता है मैं चोरी नहीं करूंगा, चॉइस लेता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चॉइस लेता है मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा, प्रभु आज ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। नीति वचन 22 और 1 में भी लिखा है, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। That's right ना, भला नाम वो बहुमूल्य सोने चांदी से भी बढ़कर है। अ गुड नेम। मुझको याद है जब मेरे फादर रेवरेंड एलिसन जोसेफ प्रभु में सो गए थे और उनके फ्यूनरल डे में मैंने ये बोला था, जितने पास्टर्स लोग जमा हुए थे और बाकी लोग आए थे, मैंने कहा जब दाऊद मरा उसने अपने बेटे के लिए सोना चांदी सब तैयार करके रख दिया टू बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। मैंने कहा मेरे फादर ने सोना चांदी ना नहीं छोड़ रखा, परंतु एक भला नाम छोड़ा ना। आज भी मैं गांव-गांव जाता हूं, देश विदेश जाता हूं, अच्छा आप रेवरेंड एलिसन जोसेफ के बेटे हैं, लोग द्वार खोल देते हैं, गुड नेम छोड़ा है ना। दिस इज मोर प्रेशियस देन सिल्वर एंड गोल्ड, द रिचेस्ट मैन इज सेइंग, सोलोमन बोल रहा है। इनफैक्ट सोलोमन ने यह भी बोल दिया, चैप्टर इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 7 वर्स 1 भी पढ़ देंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। That's right ना, a good name is better than precious ointment ना, वो बहुमूल्य इत्र से भी बढ़कर के होता है ना। ये richest man बोल रहा है, इतना धन कमाने के बाद में भी he understood a good name is better। My brother, my sister, टॉपिक बहुत सिंपल है बट येट वेरी इंपॉर्टेंट। गॉड इस बातों को बहुत ध्यान से देख रहा है। आपका लाइफ, सोशल लाइफ, कम्युनिटी में कैसा है। ये भला नाम कमाने के लिए कई बार बहुत साल लग जाते हैं, years of experience, years of relationship, हार्ड वर्क करना है तब जाकर के एक गुड नेम कमाते हैं ना। परंतु साथ साथ बैड नेम जल्दी में हो जाता है। एक छोटी सी गलती, भूल चूक, आपका years of good name सब पानी में चला जाएगा, सब पानी में चला जाएगा ना। गुड नेम, बाइबल में ये 2 एग्जाम्पल्स में भी आगे लेता हूं जो गुड नेम था इनका। एक था तबीता के बारे में, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 36 एंड 37, आप हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे प्लीज। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। यस ना, ये तबीता नाम की एक जवान लड़की थी ना, बट द बाइबल सेज शी वाज रिच इन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड चैरिटी व्हिच शी डिड कंटिन्यूअली ना। रिच इन सिल्वर एंड गोल्ड नहीं लिखा, दिस वुमन वाज रिच ना इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, भले भले काम और दान दिया करती थी। उसमें ये बहुत तत्परता या डिलिजेंट या हार्ड वर्क या इसमें लगी रहती थी वो ना। और उसके बाद में 37 वचन में लिखा है, एक समय हुआ, पता नहीं क्या बीमारी थी इसको, वो तो मर गई और लोगों ने उसके बॉडी को धो करके रख दिया। और वहाँ पीटर आया एंड वी नो द स्टोरी अहेड। पीटर ने जाकर प्रेयर किया, तबीता अराइज ना, और वो मुर्दों में से वो जी उठ जाती है ना। कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। शी वॉज अ वुमन ऑफ गुड वर्क्स, गुड नेम। टुडे द वर्ल्ड नीड्स, द किंगडम ऑफ गॉड नीड्स गुड पीपल ना, जो भले काम करेंगे, सही काम करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव जो भी दाम भी देना पड़े। एक और एक व्यक्ति इसके बारे में भी सुनिएगा ना, कर्नेलियस के बारे में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 एंड 2, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। That's right, कर्नेलियस ना एक भक्त था, डिवाउट मैन था ना, एंड वो पूरे घराने के साथ में परमेश्वर का भय रखता था ना और दान देता था। He made many charitable donations to the Jewish people and prayed to God always. He was not a Jew ना, परंतु कैसे उसका हार्ट था
ना चैरिटी करना, सहायता करना, कोई दुखियों को आंसू को पोंछ देना, किसी की मदद कर देना ना, ये इसका काम था। एंड वी नो द स्टोरी अहेड, कैसे पीटर इसके घर में गया, प्रार्थना किया, पूरा घराना होली स्पिरिट से भर गया। वाओ ना, जो गुड पीपल है प्रभु उनको गुड होली स्पिरिट से जल्दी भर देता है ना। आगे बैप्टिज्म भी हो गया। ये तो सबसे बड़ा काम इसके लाइफ में हो गया, सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो गया, पूरा हाउस होल्ड सेव्ड हो गया, filled with the Holy Spirit हो गया। Good people, God is looking for good people with a clean heart ना। So Barnabas was a good man ना, he was always ready to help others ना, इसलिए इसके लाइफ में पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट, Barnabas was a good point। सेकंड पॉइंट पे हम जाएंगे, चर्च इन जेरूशलम सेंट बारनबस टू एंटियोक ना। बारनबस वन मैन भेजा ना, वन मैन आर्मी बोल देता हूं मैं, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया। खोलेंगे एक्ट्स चैप्टर 11 में एंड वर्स 22, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे 11:22। तब उनकी चर्चा यरूशलेम के कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। द चर्च इन जेरूशलम ने जब सुना एंटियोक में बड़ा काम हो रहा है ना, एक ही व्यक्ति को भेजा, एक ही व्यक्ति। द चर्च इन जेरूशलम हैड कॉन्फिडेंस ऑन दिस वन मैन नेम बारनबस। इस व्यक्ति को भेजा और ये जाने के बाद कितना बड़ा बदलाव उस शहर में हो गया, चेंज लेकर के आ गया। गॉड यूज वन मैन, अ मैन, एंटियोक में एक प्रभावशाली कार्य करने। टुडे यू आर दैट वन मैन in that workplace, in the society, in the community, in the city, in the school, in the college, you are God's representative. God ने आपको भेजा है वहां पर पूरा चेंज लेकर के आने के लिए। आपको सैक्रिफाइस, दाम भी देना पड़ेगा। प्रभु आपको एम्पावर करेगा विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, ताकि यू विल बी दैट वॉइस crying in that wilderness. Barnabas was such a man ना। बारनबस के लाइफ में देखेंगे, या तो ये एंटियोक चर्च में हम देखते हैं, इसके पहले रिवाइवल ना कितनी बड़ी एंटियोक में आ गई, पर इससे पहले जेरूशलम में रिवाइवल था ना। परंतु बारनबस के जाने के बाद में लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर एडेड टू द लॉर्ड बिकॉज ऑफ दिस वन मैन। ये एंटियोक अभी पिवट बन गया, सेंटर बन गया ऑफ क्रिश्चियन वर्क का। अर्लियर जेरूशलम था, अब एंटियोक, बिकॉज ऑफ दिस वन मैन नाम। ये खास व्यक्ति था, और भी लोग थे, पर बारनबस के जाने के द्वारा बहुत बड़ा काम हो गया। आगे हम जानते हैं एंटियोक चर्च ने जेरूशलम में जब अकाल पड़ा, उनको फाइनेंशियल हेल्प भी भेज दिया, सपोर्ट भी भेज दिया। एक व्यक्ति ने कितना प्रभाव डाल के रख दिया इन दैट चर्च में ना। वही आज परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल, यू विल बी दैट एजेंट ऑफ चेंज ना। सो बारनबस का लाइफ इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बारनबस एक गुड नेम था। Barnabas was one man sent to Antioch. He was at one man army ना। परमेश्वर ने भेजा इसको, जेरूशलम के चर्च के द्वारा वो भेजा गया था। आगे थर्ड पॉइंट बारनबस के लाइफ में हम जाएंगे। सिंपल पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूँ हाउ वी कैन मेक एन इम्पैक्ट इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सोसाइटी। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर गुड पीपल टू बी अराउंड विथ। थर्ड पॉइंट बारनबस के लाइफ से दिखता है, बारनबस हैड अ मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट। प्रोत्साहन देने वाली सेवकाई इसके हाथ में थी ना। एक्ट्स चैप्टर 11 में एंड वर्स 23, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। एंड व्हेन ही अराइव्ड, मतलब बारनबस अराइव्ड एट एंटियोक, व्हेन ही अराइव्ड एंड सॉ द ग्रेस ऑफ गॉड, ही रिजॉइस्ड एंड बिगैन टू इनकरेज देम ऑल विथ एन अनवेवरिंग हार्ट टू स्टे ट्रू एंड डिवोटेड टू द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ देंगे। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। Barnabas, his job was to encourage the people. When he saw the grace of God, प्रभु का अनुग्रह कितना हो रहा है इस शहर के ऊपर में ना, वो जाके उनको प्रोत्साहन देने लगा। इसका मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट ना। इनफैक्ट बारनबस का नाम का मीनिंग ना, उसके नाम का मीनिंग होता है सन ऑफ कंसोलेशन।
और सन ऑफ कंफर्ट, प्रोत्साहन देने वाला. Holy Spirit is also called as a comforter. Greek word paraklisata, meaning consolation, comfort or to encourage. Holy Spirit का भी ये नाम है. Holy Spirit is my comforter. ये नाम बारनबस को दिया गया था. बारनबस का ओरिजिनल नाम ना एक्स 4:36 में लिखा है, पढ़ भी देंगे, इंपॉर्टेंट है. 36 and 37 पढ़ दो, एक्स 4:36 and 37. और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था. उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए. जी, इसका नाम पहले जोसेफ था ना, बाद में ये अपोस्टल्स ने इसका नाम बारनबस रख दिया. बारनबस रख दिया, मीनिंग ही वॉज अ सन ऑफ इंकरेजमेंट, सन ऑफ इंकरेजमेंट ना. ये जाकर प्रोत्साहन देता था. डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इंकरेजमेंट सेज दिस, एंड वी नो ऑल दिस, द एक्शन ऑफ गिविंग समवन सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप. इंकरेजमेंट ना, इट ऑल्सो मीन्स परसुएशन टू डू और टू कंटिन्यू समथिंग. उस कार्य में यस वेरी गुड ब्रदर, करते जाइए, आई एम विथ यू, डोंट वरी, निराश मत होना ना. वो किसी के आंसू पोंछता हो, किसी के कंधे पर हाथ रखता होगा, डोंट वरी ब्रदर, मैं तो हूं ना. ये इसका मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट था. दूसरों को सहायता पहुंचाना, मदद करना, ये इसका काम था. ये तो मिनिस्ट्री बन गया, मैं कहता हूं, क्योंकि एंटियोक में भी गया एंड ही वेंट एंड ही इनकरेज द पीपल ना. सो बारनबास के लाइफ में ये 3 पॉइंट हमने यहां पर देखा. ही हैड अ गुड नेम ना, ही वाज द वन मैन आर्मी सेंट टू एंटियोक, एंड नंबर 3 ही वाज अ मैन, ही गॉट अ मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन. आप में भी शायद ये गुण पाए जाते होंगे. आप दूसरों को इनकरेज करते होंगे. नहीं करते हो ना, तो करना चालू कर दो ना. होली स्पिरिट आपके अंदर से ये काम करना चाहता है ना. जो हर्टिंग वर्ल्ड है, जो पीड़ा में है, दुख में है, उनको फ़ोन करो ना, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके इनकरेज करो. आज पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा ना, बिकॉज होली स्पिरिट इज ऑल्सो अ कंफर्टर, और आपके द्वारा वो कार्य करना चाहता है. 4th पॉइंट में जाता हूं बारनबास के लाइफ से. 4th पॉइंट, ही वॉज अ स्ट्रेंजर, अ फॉरेनर टू जेरूसलम, बट हेल्पिंग अदर्स इन नीड ना. बारनबास एक स्ट्रेंजर था एक्चुअली जेरूसलम में. वो दूर देश से आया था ना. हमने पढ़ चुका है पहले वाले वचन में ना. ही वॉज फ्रॉम द कंट्री ऑफ साइप्रस. मैं मैप देख रहा हूं और आपके सामने ये मैप डिस्प्ले किया गया ना. साइप्रस ये छोटा सा आइलैंड था, लगभग 400 किलोमीटर दूर था जेरूसलम से ना. पता नहीं क्यों और ये कैसे यहां पर आया होगा, और उन दिनों में 400 किलोमीटर बहुत लंबा सफर होता होगा. शायद अपना पूरा घर गांव सब कुछ छोड़ करके यहां पर आ गया. एंड ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी ना. और ये वो चर्च जाता था जहां पर पतरस और बाकी अपोस्टल्स थे, एंड माइटी पावर ऑफ द होली स्पिरिट यहां पोर्ड आउट हो गया था. और जब शायद ये नीड प्रकट किया होगा पतरस ने, तो इसने भी अपनी जमीन जायदाद को बेच करके प्रेरितों के पांव पर ला करके वो रकम को रख दिया ना. कितना इनोसेंट है, कितना ये दूसरों की चिंता करता है. ये कार्य करने के द्वारा समझ रहा है वो सेल्फिश नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी ये मेरे लिए है, मेरा घर का, मेरा फ्यूचर का. नहीं, शायद पवित्र आत्मा ने उसके दिल में बोला होगा, बेच करके उसने रकम को प्रेरितों के चरणों पर ला करके रख दिया है ना. ये गुड मैन के क्वालिटीज होते हैं. वो सेल्फिश नहीं, ग्रीडी नहीं है ना. ये बताता है कि दूसरों की चिंता उसको ज्यादा सताती है. दूसरों को इनकरेज करना है, दूसरों को हेल्प करना है. मैं क्या करूं, कैसे करूं. उसने तो जमीन बेच करके ना दूसरों की चिंता. ये हार्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर है ना. दूसरों की सहायता करना, ये सैक्रिफाइस होगा ना एक बहुत बड़ा. वो जमीन जायदाद पता नहीं कितना प्रॉपर्टी कितना उसने लाके बेच दिया ना, और दे दिया प्रेरितों को ला करके, परंतु एक सैक्रिफाइस होगा ना. सी, अगर आपको भला करना है दूसरे के लिए ना, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा. मुझको तो याद है मेरे फादर नागपुर से मोटरसाइकिल में, वो जगदलपुर, वो उड़ीसा ना, ऑन द मोटरसाइकिल 1950s की 70s की बात बता रहा हूं मैं ना. अकेले चले जाते थे वो दूसरों को ना, उनके आंसू पोंछने के लिए,
उनको प्रार्थना करने चंगाई मिलते जाती थी ना। सो ये सैक्रिफाइस देखो ना, यीशु मसीह ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया ना, स्वर्ग छोड़ करके वो नीचे उतर आया ना हमारी सुधि लेने। हमारे जीवन में आज हरियाली, आनंद, चंगाई, छुटकारा आया बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस विच जीसस डिड फॉर अस ऑन द क्रॉस। अ गुड मैन विल मेक सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। अ गुड मैन, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला, लॉर्ड यू मे इंक्रीज एंड आई मे डिक्रीज। गुड मैन ये चाहता है ना कि दूसरों की सहायता करूं, उसका जीवन सुधर जाए, मदद हो जाए। सैक्रिफाइस ना, हमारे चर्च में भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करते हैं कॉल्ड द रीस्टार्ट प्रोजेक्ट। इट इज पीपल, पेशेंट्स लिविंग विथ HIV एंड एड्स, उनकी सुधि लेते हैं। उस टीम को हेड कर रहे हैं हमारे बीच पे डॉक्टर ग्लैडस्टोन ना। वी सल्यूट यू डॉक्टर ग्लैडस्टोन। आपके साथ डॉक्टर अशोक साहू, आप दोनों जन मेडिकल डॉक्टर्स हैं और LCU ट्रेंड भी है आप ना। शिक्षा भी पाया, वचन में दृढ़ है, गुड पीपल विद गुड कैरेक्टर्स ना। दूसरों को हेल्प करने के लिए उनको इंजेक्शन देना पड़ता, ब्लड ट्रांसफ्यूशन। सिस्टर इंदू भी हेल्प करती है वहाँ, शी इज़ अ रजिस्टर्ड नर्स देयर ना, हेल्पिंग आउट। और ये म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल में ये प्रोजेक्ट चलता है इन पार्टनरशिप विद देम। वी थैंक द म्योर मेमोरियल हॉस्पिटल टीम ऑल्सो ना। ये सैक्रिफाइस है ना, दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों की मदद करना है ना। सो जो बारनबास क्यों ना स्ट्रेंजर था, ही वॉज नॉट अ जू बट ही वॉज हेल्पिंग द जू। दूसरों की सुधि वो ले रहा था, हेल्प करता जा रहा था। ये हार्ट ऑफ गॉड है, पवित्र आत्मा है। हमारे बीच में कुछ हम लोग हाउस ऑफ होप मिनिस्ट्री भी चलाते हैं ना। अनाथ बच्चों की, गरीब बच्चों की सुधि लेते हैं, खासकर ये लॉकडाउन सिचुएशन में। व्हाट स्टोरीज वी आर हियरिंग, बिकॉज उनका स्कूल्स नहीं चल रहा है ना। उनके घर घर जा कर के हमारे पास्टर लोग जा कर के उनको अनाज पहुँचाते उनके घर में ना। उनको सुधि ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करा रहे, घर घर जाके पढ़ाना पड़ता है ना। ये ऐसी भी जरूरत पड़ गई है सैक्रिफाइस करना। कोविड-19 में कितने घर परिवार है पे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। हमारे चर्च के कितने लोगों ने अनाज बांटा है, कितनों ने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया है। थैंक यू सो मच हार्वेस्ट चर्च नाउ फॉर हेल्पिंग आउट दोज पीपल इन नीड ना। ये गुड पीपल के द्वारा परमेश्वर कुछ गुड वर्क्स करना चाहता है। बारनबास भी वैसा ही व्यक्ति था, इसलिए बारनबास के लाइफ में हमने अभी तक 4 पॉइंट देखा है। ही वॉज अ गुड मैन, गुड नेम ना। he was sent to Antioch. He was at one man army and he had the ministry of encouragement and he was a stranger but helping others जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 भी लेना चाहता हूं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बारनबास encourage Saul into the ministry. Saul जो आगे पॉल बन गया और कितने सारे चर्चेस की स्थापना किया। But it was this one man ना, उसने जाकर के पौलुस को बुलाया एंटियोक में। उसका 11 चैप्टर और 25 कलम एक्ट्स में कहता है, तब वो शॉल को ढूंढने के लिए तारसुस को चला गया ना। एंटियोक से टारसस जाता एंड ब्रिंग सॉल एट एंटियोक ना। गुड मैन ना, दूसरे डिसाइपल्स को तैयार कर रहा है, उनको प्रोत्साहन कर रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है ना, ताकि वो भी आकर के यहाँ पर हाथ बढ़ाए और काम वो करने पाए। उसका 26 वचन कहता है, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। यस ना, लगभग ये कम से कम ना 1.5 साल, 1 साल से ज़्यादा ये यहाँ पर रुके रहे, मेहनत किया, काम किया। एंड इट वॉज एट दिस प्लेस ना वेयर द डिसाइपल्स वर फर्स्ट कॉल्ड एज क्रिश्चियंस। आज यहाँ पर मैं क्रिश्चियंस पुकारते ना लोग ना, पहली बार कहाँ पर हुआ? यहाँ पर एंटियोक में दे वर कॉल्ड एज क्रिश्चियंस। मतलब डूइंग डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट है, डूइंग दोज वर्क्स जो क्राइस्ट करता है ना। वो आज आप भी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। हम क्राइस्ट जो काम करता था वैसे काम करने पाए ना। ये बारनबास ने जा करके पॉल को बुला के ले आया। उतना ही नहीं, परंतु एक्ट्स चैप्टर 9:26 हम पढ़ेंगे, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीत न होता था कि वह भी चेला है।
ये व्यक्ति ने तो जब सॉल, जिससे सारे प्रेरित लोग डिसाइपल्स घबराते थे ना, क्योंकि ये तो कट्टर क्रिस्ट विरोधी व्यक्ति था ना, परंतु ये बारनबास ने जाकर उसको इनकरेज किया, उसको लाया सेवकाई में, जेरूशलम के चर्च में इंट्रोड्यूस करता है। और 27 कलम में भी आगे लिखा है, यहाँ पर उसने आकर के ना बारनबास को इनकरेज किया, कॉन्फिडेंटली बोला दैट ही इज अ गुड मैन, और वहाँ से सॉल का लाइफ शुरू हो जाता है ना, जो आगे हम जानते कितना बड़ा भारी प्रेरित, कितनी कलीसिया की स्थापना किया, कितने मिशनरी जर्नीज में ना बारनबास भी उसके साथ में कई बार गया वो ना, और चर्चेस की स्थापना किया। पूरे यूरोप भर में प्रचार हुआ, चर्चेस की स्थापना हुआ, रोम में भी गया, वहाँ भी प्रचार हुआ सॉल के द्वारा और चर्चेस की स्थापना हो गई। ये हाईली क्रेडिट होता है सॉल की सेवकाई, पर सॉल को इनकरेज करने वाला बारनबास था। सो गुड मैन विद अ गुड नेम विल इनकरेज अदर्स and want them to grow bigger, better, stronger themselves। ना हम जानते हैं पौल तो बारनबास से बढ़कर के सेवकाई किया ना। जो गुड व्यक्ति है वो इसमें आनंद लेते हैं कि मैंने किसको इनकरेज किया और वो कहाँ से कहाँ बढ़ गया। मुझे बहुत खुशी लगती जब हमारे हाउस ऑफ होप के बच्चे ना वो 10-10, 12-12 साल हमारे साथ में हॉस्टल में रहते थे ना, फिर जाकर अभी कहाँ वो नौकरी पर चढ़ गए हैं, बहुत शादी हो गई है। बहुत खुशी लगती है बहुत सालों के बाद जब मुलाकात होती है, टू सी देम प्रोग्रेस ना। ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट आपके अंदर में, मेरे अंदर में चाहेगा। इवन यीशु मसीह ने भी कहा था ना, जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरन उससे बढ़ कर के भी काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह का ये सपना था कि उसके चेले उससे बढ़ कर के काम करें ना। सो गुड व्यक्ति जो होता है, गुड नेम के साथ में होता है, वो डिसाइपल्स को रेस करता है और उसके डिसाइपल्स उससे भी आगे बढ़ जाते हैं ना। एक पॉइंट बाकी है, 5 पॉइंट हो चुके। बारनबास वाज अ गुड मैन, ही वाज सेंट टू एंटियोक, 1 मैन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट था ना। नंबर 4, ही वाज अ स्ट्रेंजर बट हेल्पिंग अदर्स। नंबर 5 ना, ब्रॉट सॉल इनटू द मिनिस्ट्री। छठा और आखिरी पॉइंट लेना चाहता हूं, कॉल्ड एंड सेंट आउट बाय द होली स्पिरिट। एक्ट्स चैप्टर 13 में वर्स 2 और 3 में अभी समय नहीं पढ़ने का, परंतु लिखा है जब उन्होंने उपवास प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने बोला, बारनबास एंड सॉल को जिस सेवकाई के लिए मैंने चुना उनको तू अलग कर दे। होली स्पिरिट कॉल्ड देम आउट। होली स्पिरिट सॉ दैट दीज 2 पीपल वर द आइडियल कैंडिडेट्स, जो आगे जाकर के यूरोप में भी चर्चेस को प्लांट करेंगे, रोम में भी, इटली में भी, थेसलोनिकी एंड सो मेनी अदर प्लेसेस ना। गॉड इज लुकिंग फॉर गुड पीपल। होली स्पिरिट आज आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। आप भले काम करते जाओ, प्रभु अपनी आत्मा के साथ आपको भर देगा ना, और कहाँ से कहाँ आपको इस्तेमाल कर लेगा मुझको नहीं पता है ना। इसलिए हमारे कुछ भी काम आज जो करते होंगे ईमानदारी से करिएगा, सच्चाई से करिएगा, मेहनत के साथ में करते जाए, किसी को चोरी ना करने पाए, लूटने ना पाए, धोखाधड़ी ना होने पाए, बुरा ना बोलने पाए, गाली गलौच ना होने पाए। गॉड इज लुकिंग फॉर गुड पीपल, गुड पीपल। Remember this, we are not men pleasers but God pleasers. We want God to be pleased, and God is so pleased जब गुड नेम के साथ में हम आगे बढ़ते। इसलिए बारनबास के लाइफ से ये कुछ 6 पॉइंट मैंने कुछ पाया हूँ। नंबर 1, गुड नेम उसका है। नंबर 2, ही वॉज सेंट टू एंटियोक एज अ 1 मैन आर्मी। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ इनकरेजमेंट इसका था। नंबर 4, ही वॉज अ स्ट्रेंजर, परदेसी, बट ही वॉज हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सुधि लेता था। ही ब्रॉट सॉल इनटू द मिनिस्ट्री। नंबर 6, ही वॉज सेंट आउट बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने इनको चुना, अलग किया और भेजा आगे सेवकाई में ना। परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसमें से एक ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। और आज आपको भी चुना है परमेश्वर ने भलाई करने के लिए, भलाई करने। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आज अपने सिर को हमने जब झुकाया है, आंखों को बंद किया है, अपने आप को जांचे, क्या मेरा जीवन सही है परमेश्वर के आगे में? कोई खोटे काम, कोई धोखाधड़ी, कोई बुरे बातें तो नहीं बोल रहा हूँ और कर रहा हूँ? अगर ऐसी बातें हैं तो आज मन फिराने पाए। प्रभु आज आपको पवित्र आत्मा से भर देगा।
पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग क्रिश्चियंस बुला दिए जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज क्रिस की आत्मा तूने हमारे अंदर में डाला है, हमारी मदद कर प्रभु। जो कुछ भी हो जाए प्रभु, फिर भी हम भला 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 ही करने पाए। हमें बल देना, शक्ति देना, सामर्थ देना प्रभु, कि हम सत्य बोलने पाए प्रभु जी, हम सही काम करने पाए प्रभु। जो भी दाम भी देना पड़ेगा पिता प्रभु, हर एक के साथ हो। अभिषेक कर पिता परमेश्वर प्रभु, आज पवित्र आत्मा का नया बल और सामर्थ दे पिता, पवित्र आत्मा से भर दे पिता, पूरे घराने को भर दे पवित्र आत्मा से पिता, जैसे तूने कर्नेलियस के साथ में किया। बड़े बड़े काम तबीता के लाइफ में किया पिता, आज भी तो गुड लोगों को ढूंढता है पिता। मदद कर पिता, टू बी ए गुड एग्जाम्पल इन आवर कम्युनिटी लॉर्ड, इन आवर सिटी लॉर्ड, इन आवर वर्क प्लेस लॉर्ड, जहां पर भी होंगे एक गुड एग्जाम्पल ऑफ बिलीवर हम बन सके पिता। हर एक के साथ तो इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बेनेडिक्शन को ग्रहण करेंगे। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ द फादर, फेलोशिप, कम्युनियन एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट may now rest and abide upon each one of us from this time even till the time that Christ returns in all his glory. Amen. Amen. Thank you. God bless you.